Hello everyone. Students, today we are going to read a poem named On Killing a Tree. It is composed by J. Patel. In this poem, the poet has shown his sadness and concern over cutting of trees. As we all know how much trees are being cut. Okay, you must have observed people cutting down trees. But can they kill a tree? Now, actually, in this poem, the poet wants to say that it's not easy to kill a tree or to cut a tree. Okay, it requires lot of efforts. So, the idea of the poem is man's cruelty towards tree. As we all know, the trees are the primary source of life on earth. They are also called as powerhouse. The poet here gives us the message that trees are very important for humans. They are the basic source of human life and so they should not be cut. So here in this poem the poet has personified the trees. Okay, he wants to say here that trees are also living beings. Even they have life in them. They must not be cut. So let us see in this poem how he had personified the tree just like a human being. As the man, a human being is being hurt when it is killed, massacred और बैनी किसी भी हथियार से अगर उसको मारा जाए तो ह्यूमन बीइंग किस तरह से हर्ट होता है, वही सब कुछ एक ट्री के साथ भी होता है. So let us begin. You must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? Is it easy to do so? Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. It takes much time to kill a tree. Not a single jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air and water, and out of its leprous hide sprouting leaves. Now here the poet says, it takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It means if you want to cut a tree, तो एक सिंपल जैब यानी कि एक सिंगल प्रहार आप जब मारोगे या उस ट्री को काटने की कोशिश करोगे तो उससे काम नहीं चलेगा. It won't do it. So for that you require lot of efforts to kill it. So एक पेड़ को मारने में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है. एक चाकू से अगर आप उसके ऊपर प्रहार करोगे, ठीक है, जैब करोगे तो it won't do. Now what is the reason behind it? It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. So slowly consuming earth, it has grown. यानी जब एक पेड़ when it starts growing, okay, consuming here means to get the nutrition from the earth. It get nourishment from the earth. The earth nourishes a tree, okay, and it helps the tree to grow, to rise out from that crust. Crust का मतलब होता है यहाँ पर है अर्थ. तो ज़मीन में से बाहर निकलना, फिर ग्रो होना धीरे धीरे, और उसके लिए सबसे मेन सपोर्ट क्या है? अर्थ, ये धरती जिसकी वजह से ये नरिश होते हैं पेड़. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर. फिर सूरज की रोशनी, हवा, पानी, ये सब चीज़ें वो पेड़ लेता है, एब्जॉर्ब करता है, और यही इसी चीज़ों से उसको और नरिशमेंट मिलता है और वो पेड़ बढ़ता है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. हियर लेप्रस हाइड मीन्स डिसकलर्ड बाग. बाग का मतलब होता है एक्चुअली छाल, ठीक है, किसी पेड़ की छाल होती है उसको बाग कहा जाता है. तो सफ़ेद स्पॉट्स होते हैं उस छाल के ऊपर, यानी जब एक छोटा सा पेड़ उगना शुरू होता है, when it starts growing, okay, that discolored bark, it start coming out of that crust. So leaves sprout of it out of its skin that otherwise looks ill. तो उस
जो अर्थ से जो वो ग्रो होना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे उसकी लीव्स स्प्राउट होने लगती है, isn't? And then these leaves that starts turning into सॉफ्ट ब्रांचेस, और फिर धीरे धीरे इस तरह से पेड़ बड़ा होता है। ओके, सो ये सारा इतना टाइम लगता है एक पेड़ को धीरे धीरे बढ़ने में। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम फॉर अ ट्री टू ग्रो। सो इट इज़ नॉट ईजी कि आप सिर्फ एक कट मारोगे और वो पेड़ कट जाएगा। इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू किल दैट ट्री। So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. Now I think we are not unknown to the process of growing of a tree, how the tree grows, और हम समय समय पर उसकी ब्रांचेस को काटते रहते हैं जिससे कि वापस नए तने आने शुरू होते हैं, नई पत्तियाँ आनी शुरू होती है, और एक पेड़ जब ज़्यादा फैल जाता है तो उसको काटा जाता है और ताकि वो वापस प्रॉपरली बढ़े। तो हियर द पोएट सेज कि एक जैब से यानी एक कट से तो उसको कुछ नहीं होगा, तो उस पेड़ को कैसे काटना है। सो ही सेज सो हैक एंड चॉप। हैक हियर मीन्स टू कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोज, यानी तेज तेज जोर जोर से उसके ऊपर ब्लो करना है, ठीक है, जिससे भी पेड़ काटा जाता है उससे आपको जोर जोर से उसके ऊपर ब्लो करोगे। चॉप का मतलब टुकड़ों में काटना, ठीक है। तो एक कट में तो वो कटेगा नहीं, पहले उसकी ब्रांचेस, पहले छोटे तने, फिर बड़े तने, फिर उसका बड़ा सा ट्रंक काटा जाएगा। सो इट नीड्स अ प्रोसेस टू कट दैट ट्री। So he says, so hack and chop, but this alone won't do it. लेकिन hack and chop सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा। Not so much pain will do it. इससे तो बहुत कम दर्द होगा उसको, पेड़ को, ठीक है। Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal here. Now here the poet has given the personification to the tree like having a pain and bleeding. Actually the trees don't bleed, isn't? पेड़ में से खून नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ पर उसको एक ह्यूमन क्वालिटी दी है पोएट ने, और कहा है कि जितना दर्द चोट लगने पर एक ह्यूमन बीइंग से की बॉडी से खून निकलता है, दर्द होता है, तो वो का वो इस पेड़ के साथ भी होता है। पेड़ को भी बहुत दर्द होता है। तो वो कहता है पोएट कि आप जिस तरह से उसको काटोगे तो उससे उसको ज़्यादा दर्द नहीं होता है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, और वही ब्लीडिंग बार्क आई टोल्ड यू द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री, तो ही विल हील यानी वो तो फिर से उसका घाव यानी उस ट्री के जो ज़ख्म हैं वो वापस भर जाएंगे। इट विल बिकम हेल्दी अगेन। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। एज यू सी दिस इज़ अ ट्री, this is the earth. When you cut the tree from here, okay, or you cut the branches of the tree, what will happen again from here? छोटे छोटे से वापस ग्रीन ट्विग्स का मतलब होता है, यहाँ पर ट्विग्स का मतलब है वेरी स्मॉल थिन ब्रांचेस, ठीक है। जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस होते हैं उसमें से जो छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकलती है, छोटे छोटे से तने निकलते हैं, उसको ट्विग्स कहते हैं। तो फिर से ये पेड़ यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा, छोटे छोटे से ट्विग्स आएंगे इसके ऊपर, और यही एक इस पेड़ को वापस हरा भरा कर देंगे। मिनिएचर बोज, मिनिएचर मीन्स बहुत ही छोटे छोटे, और बोज का मतलब जैसे मैंने कहा ब्रांचेस, यानी जो बचे हुए जो छोटे से ब्रांचेस है उनके ऊपर से वापस छोटी सी ब्रांचेस बनना शुरू हो जाएगी, स्टार्ट ग्रोइंग, विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपांड अगेन टू फॉर्मर साइज। और अनचेक्ड यानी अगर इनको भी नहीं काटा गया, ठीक है, और अगर इनको बढ़ने से रोका नहीं गया, इफ़ दे आर नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग दे विल एक्सपांड अगेन, इट मीन्स दे विल ग्रो अगेन, यानी ये पेड़ जिसको हम काट रहे हैं ये फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, सो इफ देयर ग्रोथ of those green twigs is not checked,
the tree again grows to its former size, यानी पहले जैसी साइज में वो फिर से पेड़ बढ़ जाएगा. ओके, सो हियर द पोएट सेज दैट अब अगर आपको पेड़ को काटना है, ख़त्म करना है, तो क्या करना होगा, वो पोएट ने नेक्स्ट स्टैंजा में डिस्क्राइब किया है. नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. It is to be roped tight and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source, white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. Now see here, the poet says, no, it means whatever we have try to do till now for killing a tree will won't do here. What we have to do, the root is to be pulled out, यानी कि उस पेड़ की जो जड़ है उसको हमें उखाड़ना होगा. ठीक है. आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकर यू नो इट इज़ दिस काइंड ऑफ एक लोहे का, जिसको हिंदी में लंगर कहा जाता है, जो शिप्स में बड़े बड़े शिप्स को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है. बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं उनको मजबूती से पकड़ने के लिए. तो यहाँ पर एंकर का मतलब है अर्थ डेट कीप्स होल्डिंग द रूट टाइटली लाइक एन एंकर. तो जिस तरह से एक एंकर यूज़ किया जाता है, इस तरह से शेप होता है एंकर का. ओके, जो जनरली एक रस्सी से फिट होते हैं और जो होल्ड बड़ी बड़ी जो बोट होती है होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर अर्थ को एंकर कहा गया है. ठीक है, यानी अर्थ ने उस पेड़ को जड़ों की हेल्प से होल्ड कर रखा है बहुत ही टाइटली. ओके, सो आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट. इट इज़ टू बी रोप टाइड एंड पुल्ड आउट. तो पहले उसको रस्सी से बांधना होगा. टाइड का मतलब बहुत ही टाइटली उसको बांधना है रस्सी से, और पुल्ड आउट का मतलब जोर से झटके से उसको ज़मीन से उखाड़ना होगा उन जड़ों के साथ. ओके, दे हैड टू बी स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव. और जितना गहराई तक उसकी जड़ें फैली हुई है उन जड़ों के साथ एंटायरली यानी पूरा का पूरा उसको अर्थ केव मतलब अर्थ से आपको निकालना होगा. इन द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड. नाउ स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड हियर मीन्स इस ट्री का जो मेन स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से ये ट्री खड़ा रहता है, हरा भरा रहता है, पनपता है, बढ़ता है, तो उसकी जो मेन स्ट्रेंथ है, उसका जो मेन पावर है, वो क्या है? द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव, hidden for years inside the earth. And what are they? Those are the roots of the trees, जो इतने सालों से उस धरती के नीचे बढ़ रही थी और इसी की वजह से ये ट्री बढ़ रहा था. ठीक है, और ये जो जड़ें होती है, जो मेन सोर्स है इस पेड़ का, जड़ों के बिना तो पेड़ बढ़ता नहीं है, तो ये एक ट्री का मेन सोर्स है जो कैसी है, अंदर से वाइट और वेट. ओके, और सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है पेड़ का, ट्री का एक सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है. यानी अब अगर हम किसी पेड़ को जड़ से ही उखाड़ दें या उसकी जड़ों को ही काट दें तो वो पेड़ नहीं बढ़ता है. तो सबसे जो उसकी स्ट्रेंथ थी, जो उसका पावर था, वो सबके सामने एक्सपोज यानी रिवील हो जाता है. लोगों को पता चलता है, यानी हमको पता चलता है कि सबसे मेन स्ट्रेंथ उसका क्या है, उसकी जड़ें. सो हियर वी वांट टू से सेंसिटिव का एक्चुअली मतलब होता है कि हम लोग जो लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है, फीलिंग्स के थ्रू अटैच्ड होते हैं, दैट आर सेड टू बी सेंसिटिव. तो हियर द ट्री इज सेंसिटिव बिकॉज ऑफ द रूट्स. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट इज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री? Okay, the source white and wet, the most sensitive, which was hidden for years inside the earth. तो
पोएट यहाँ पर कहना चाहता है कि हमको उस ट्री को जड़ से खींच के एक झटके से जड़ों के साथ उखाड़ना होगा, देन ओनली वी कुड किल अ ट्री। ओके, देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Then the matter. Okay, now when the root of a tree is pulled out of the earth, जब हम किसी पेड़ को जड़ से उखाड़ देते हैं, then it starts scorching. Scorching का मतलब यहाँ पर है सूखना। तो तेज़ धूप में उसको रखते हैं तो पेड़ धीरे धीरे सूखने लग जाता है। चोकिंग का मतलब एक्चुअली हमारे लिए, ह्यूमन बींग के लिए यूज़ होता है दम घुटना, सफोकेशन होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना। तो ऑब्वियसली जब एक पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, देन इट विल स्टार्ट स्कॉचिंग, इट विल स्टार्ट चोकिंग, और धीरे धीरे वो हरे से ब्राउन कलर का होता जाएगा। और हमने ये नोटिस किया है कि जब पेड़ सूख जाता है तो वो थोड़ा क्या वो हार्ड हो जाता है ना। तो इट विल स्टार्ट हार्डनिंग। ट्विस्टिंग का मतलब सारी उसकी जो तने हैं जो स्ट्रेट रहती है हमेशा, वो सारी बेंड हो जाएगी। और विदरिंग का मतलब यहाँ पर है टू गेट ड्राई, यानी मुरझा जाना। ठीक है, तो इस तरह से एक पेड़ को जब आप जड़ से उखाड़ दोगे तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी। देन द मैटर इज़ यूज्ड द वर्ड फॉर अ ट्री। इट विल स्टार्ट स्कॉचिंग, चोकिंग इन सन एंड एयर, हवा और धूप से वो सूखने लग जाएगा पेड़ और हार्ड हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे मुरझा के वो पेड़ ख़त्म हो जाएगा। देन इट इज़ डन, इट मीन्स देन हियर अ ह्यूमन बीइंग इज सक्सेसफुल इन किलिंग अ ट्री। सो हियर कम्स द एंड ऑफ अ ट्री। तो इस तरह से एक पेड़ को काटा जाना, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना। तो यहाँ पर पोएट ने इस पोएम के थ्रू ये नहीं बताया है कि आपको पेड़ को कैसे काटना है। ठीक है, यहाँ पर पोएट ने बताया कि हाउ क्रूअल द ह्यूमन बीइंग इज़, हाउ क्रूअल द मैन इज़, द वे इट किल्स द ट्री। ओके, वी पीपल डोंट इवन थिंक दैट हाउ इट विल कॉज पेन टू देम, टू द ट्रीज़। ओके, और किस तरह से हम एक पेड़ को कितनी क्रूरता से काटते हैं, और ये भी नहीं सोचते हैं कि पेड़ को भी हर्ट होता है। ठीक है, ओनली फॉर आर सेल्फिशनेस, हम सिर्फ अपनी ज़रूरतों की वजह से इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। सो हियर ही वांट टू से द पोएट इज़ गिविंग अ गुड मैसेज दैट ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन्स। ओके, दे आर द बेसिक सोर्स ऑफ आवर लाइफ, एंड ही ऑल्सो सेज दैट द वे विच अ ट्री कैन बी किल्ड, फाइनली किल्ड, okay, is really reflecting the violent way, okay, of being a tree massacred here. Okay, so here we have completed our poem. Thank you.